عمران کی تحریک کو مزید خون مل گیا، فیصل آباد کے احتجاج میں تشدد کون چاہتا تھا، موقع کس نے فراہم کیا اور نقصان کس کا ہوا؟ 30 نومبر کے بعد مذاکرات کی امید بندھی تھی، فیصل آباد احتجاج نے مذاکرات کے امکان پر پانی پھیر دیا۔ حالیہ احتجاجی سیاست اب تک 28 جانیں نگل چکی ہے، شاید کسی کو احساس تک نہیں، سیاست کے سینے میں واقعی دل نہیں ہوتا۔ اور الیکشن ٹریبیونل نے NA 122 میں پولنگ بیگز کھولنے کا حکم دے دیا، یہ کیس PTI کی تحریک کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور پاکستان کے بہترین تجزیہ کاروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج جیو نیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، آج جیو نیوز کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں ثنا مرزا اور میں ہوں مسعود رضا۔ پاکستان میں آج پاکستان کی تاریخ میں جو دن تھا یہ سیاسی کارکنوں کے تصادم کا دن تھا۔ فیصل آباد میں کہیں لہو تھا تو کہیں دھواں دھواں تھا۔ 30 نومبر کو عمران خان کی جانب سے جو پلان سی متعارف کرایا گیا تھا، آج سے ہم نے اس کا واقعی عملی طور پر اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا فیصل آباد میں دیکھ لیا ہے۔ جی ہاں، قومی اسمبلی کی 11 اور صوبائی اسمبلیوں کی 22 نشستیں رکھنے والے فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف ایک نشست ہے صوبائی اسمبلی کی PP 72 میں، لیکن اس کے باوجود بھی آج پاکستان تحریک انصاف نے فیصل آباد کا نقشہ بدل دیا۔ جو آج ہم نے مناظر دیکھے سارا دن ٹیلی ویژن کے اوپر، انتہائی افسوسناک مناظر تھے۔ ہمیں بدترین احتجاج، بدنظمی، تشدد کے واقعات ہوتے ہوئے فیصل آباد کی سڑکوں کے اوپر نظر آئے اور اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ ایک شخص اپنی جان سے گیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا۔ جی ہاں، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج فیصل آباد میں تشدد بھرے مظاہرے ہم نے دیکھے اور جو مناظر ہمارے سامنے آئے وہ یقینی طور پر تشویش کی بات ہے اور افسوسناک چیزیں تھیں ساری۔ حکومت کا موقف یہاں پر یہ ہے کہ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ گلو بٹوں کے ساتھ مل کر ہم پہ حملہ کیا۔ صورتحال یہی تھی کہ ایک طرف تحریک انصاف کے کارکن تھے تو ایک طرف نون لیگ کے کارکن تھے، اور میرا سوال یہی ہے کہ جب دونوں طرف سے کارکن ایک دوسرے کے سامنے صف آ رہا تھے تو اس وقت سیکیورٹی کہاں تھی، سیکیورٹی فورسز کہاں تھیں، ان کے درمیان میں انہیں ہونا چاہیے تھا، وہ موجود کیوں نہیں تھیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر تحریک انصاف کا اپنے کارکنوں کو صف آرا کرنا غلط تھا تو پھر نون لیگ کے کارکن صف آرا اگر ہوئے تو یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جو اپنی تحریک لے کر یہاں پر آئے اور جو کچھ یہاں پر ہوتا رہا اس میں سرا جو ہم نے چیزیں دیکھیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت واضح طور پر کہ عمران خان صاحب تو تشدد اگر چاہتے تھے، اپنے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے، تو کیا نون لیگ نے اپنی قیادت کو کسی بھی طرح سے، نون لیگ کی قیادت نے اپنے کارکنوں کو کسی بھی طرح سے کوئی ہدایت دی تھی، ان سے کہا تھا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں؟ اگر نہیں کہا تھا تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ لیکن صوبائی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین جو کچھ چل رہا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن اگر ہم پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر سچویشن دیکھیں تو فیصل آباد کے مناظر کچھ خاطر خواہ اچھے نہیں تھے۔ بڑی تشویش تھی پورے پاکستانیوں کو جو کہ دیکھ رہے تھے کس طرح سے دونوں جماعتوں کے کارکنان ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور اس دوران جب صورتحال زیادہ کشیدہ ہوئی تو PTI کا جو ایک کارکن تھا وہ اپنی جان سے بھی چلا گیا۔ یہ کہا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، خاص طور پر شیریں مزاری جو کہ رہنما ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جس شخص نے اس کارکن کو ہلاک کیا تھا وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے داماد کا ایک گارڈ تھا جس نے یہ گولی چلائی تھی، لیکن اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جس نے فائرنگ کی اس کارکن کے اوپر نہ تو اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا اور نہ ہی اس کا تعلق پولیس سے تھا۔ اب انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ فائرنگ کرنے والے کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کی جو اتحادی مذہبی جماعت ہے اس سے تھا۔ اب اس کی تحقیقات ہونی بہت ضروری ہے کہ کیا واقعی رانا ثناء اللہ صاحب کی بات درست ہے یا پھر یہ ایک الزام اور ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے سر پر ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ زعیم قادری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ویژولز موجود ہیں، تحقیقات کی جائیں گی اور اس شخص کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔
दीगर शहरों में भी हमने फैसलाबाद के बाद ये मनाजिर देखे, चाहे इस्लामाबाद हो, कराची हो, पेशावर हो या फिर लाहौर हो। मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर निकल आए और उनकी जानिब से न सिर्फ ये कि रोड्स ब्लॉक किए गए बल्कि एहतजाज भी किया गया। हक नवाज अपनी जान से चला गया, इसमें किसका नुकसान किसका फायदा? यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद को मजीद कुव्वत मिल गई है, तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद को मजीद खून मिल गया। और जैसा कि हमने इब्तिदा में कहा था कि कौन चाहता था तशद्दुद करना और किसने मौका फराहम किया। अगर इमरान खान साहब पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे तो इमरान खान साहब जब यहाँ पर आए थे तो फिर हुकूमत को और हुकूमती जमात को क्या कुछ करना चाहिए था? क्या वो उसने यकीनी तौर पर वो सब कुछ नहीं हुआ। अगर एक दिन ये एहतजाज वहाँ पर हो जाता, कारोबार बंद होता, शहर बंद होता और मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपने कारकुनों को ये कह देती कि आज किसी किस्म का रिटेलिएट नहीं करना, किसी किस्म का रद्द अमल हमें नहीं देना है, तो फिर शायद सूरत हाल कुछ और होती, कल से चीज़ें मामूल पर आ जाती। मगर आज जिस चीज़ की इब्तिदा हुई है, लगता यह है कि अब कराची के बाद जब लाहौर ये पहुँचेंगे तो लाहौर पहुँचने के बाद सूरत हाल मज़ीद गंभीर होती नजर आएगी। इसका ऐलान आज इमरान खान ने भी अपने खिताब में किया है। और इसी हवाले से मजीद भी बात कर लेते हैं। आज जो पूरी सिचुएशन रही दिन भर, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर कानून, साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त मौजूद है। सनाउल्लाह साहब, शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो भी सूरत हाल रही, एक शख्स भी अपनी जान से चला गया, क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को अगर ये कहा जाता कि थोड़ा सा तहम्मुल का आज मुजाहरा कर लेती मुस्लिम लीग नून, तो क्या सूरत हाल इस हद तक बुरी ना होती फैसलाबाद में? जी, मैं ये अर्ज करूं कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने बिल्कुल तहम्मुल का मुजाहरा किया है और जहां कहीं भी कल घंटा घर में या आज किसी जगह पे जहां कहीं भी कोई मामला हुआ है तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने कोई नारे का जवाब नारे से देने के अलावा किसी किस्म की वायलेंस जो है वो नहीं की। और जब फैसलाबाद के ताजिर जो है वो हड़ताल नहीं करना चाहते थे, फैसलाबाद के ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पे उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट को लेके आए और आज 10:30 बजे आप पूरा मीडिया पूरे चैनल अपने रिपोर्ट से पूछ रहे कि आज 10:30 बजे फैसलाबाद का मामूल का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से ओपन था, मार्केट्स खुली थी, बाजार खुले थे, सड़कों के ऊपर ट्रांसपोर्ट रवादवा थी। उस वक्त इन्होंने अपना सेकंड प्लान जो है कि जलाओ, गिराओ, मारो, मर जाओ, वो उसके ऊपर अमल करते हुए इनके कारकुनों ने 3 पॉइंट्स के ऊपर, नवल्टी पुल के ऊपर, अब्दुल्लापुर के ऊपर और जो है वो अपना मिल्लत चौक के ऊपर, वहां पे इन्होंने अपने को 100 150 कारकुन भेजे। उन्होंने वहां पे टायर जलाए, उन्होंने वहां पे पथराव किया, उन्होंने वहां पे जो है वो ट्रांसपोर्ट को रोका। अब वहां पे जो है दोनों जगहों पे वहां पे कोई सकफल नहीं हुआ, कोई मुस्लिम लीग के कारकुनों ने वहां पे इनको जो है वो जबरदस्ती रोका, पुलिस ने भी रिस्ट्रेन किया। लेकिन नवल्टी पुल के ऊपर एक जो बंदा है वो एक साइड से निकला, उसने फायरिंग की और उस फायरिंग से एक आदमी जो है वो हलाक हुआ। उसकी फुटेज, ये खुशकिस्मती हमारी ये है कि उसकी फुटेज जो है वो मीडिया के पास मौजूद है। आप उस फुटेज को पूरी तरह से उसको दिखार लें। कल 3 बजे मैं ठीक वो फुटेज राना साहब, वो फुटेज टेलीविजन चैनल्स पे चल भी रही है और आपकी जमात के कई रहनुमा इस पर अपना मौक़िफ़ भी दे चुके हैं। ये फरमाएं कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन पुरतशद्दुद थे, वही पुरतशद्दुद थे, उन्हीं का बंदा मर गया। फिर ये बताएं जब उनका मुजाहरा था तो फिर नून लीग के कारकुन वहां पर क्या कर रहे थे? और ये भी बताएं कि कल परसों से जब आपके कारकुन डंडे, अंडे और टमाटर दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि हम एहतजाज करने वालों का मुकाबला करेंगे, तो आप लोगों ने उन्हें क्या हिदायत की थी? जी, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि आप कहते हैं कि उनका कारकुन मर गया, तो फिर मारने वाला कौन है ये मैं आपको कल बताऊंगा और उसके बाद जो है फिर ये पता चलेगा। पीटीआई का जो असल चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आएगा। कल मैं 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। अब आ जाए आपके, हमने लोगों को क्या कहा? हमने लोगों को ये कहा कि आप जो है वो रिस्ट्रेंट करें, आप बिल्कुल किसी तसादम में ना जाएं। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि एक दुकानदार है, एक ताजर है, एक रेहड़ी वाला है, एक मजदूर है, एक किसी ने अपने किसी काम से जाना है। अब पूरा फैसलाबाद जब 10:30 बजे उन्होंने इनकी अपील को मुस्तरद कर दिया, लोग अपना कारोबार बंद नहीं करना चाहते, तो फिर क्या ये हर बंदे को जब जबरदस्ती जो है वो करवाएंगे तो फिर किस किस बंदे को जो है वो हम ये कह सकेंगे? लेकिन इसके बावजूद मैं ये आप कह रहा हूं कि इस एक वाकये के अलावा और जिस वाकया के बेनिफिशरी ये हैं और हम कल साबित करेंगे कि उस वाकये में किस तरह से इनका हाथ है,
इसके अलावा आप मुझे बताएं कि पूरे फैसलाबाद में जो है किसी जगह पे कोई वायलेंस हुई हो। आज ये इमरान खान साहब 3-4 हजार बंदों को लेके पिछले 4 घंटों से जो है राणा साहब की माजरत, यही सवाल राणा साहब एक चीज आपसे वजाहत तो करने जी राणा साहब एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, 11 कौमी असेंबली की नशिस्तें आप लोगों ने जीती, 22 सूबाई असेंबली की नशिस्तों में से एक सूबाई असेंबली की नशिस्त पीटीआई के पास है। उसके बावजूद भी अगर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को रोका जाता, कर लेने दिया जाता उनको एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या जरूरत थी मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को बाहर निकलने की और इतना दंगा फसाद शहर में करवाने की? सना मिर्जा साहिबा, बात ये है कि ये दंगा फसाद जो है ये उन्होंने 3 पॉइंट्स के ऊपर किया है। अब आप देखें पिछले 4 घंटों से 2,500-3 हजार आदमी लेके इमरान खान साहब और 80-85 इनके पास गाड़ियां हैं, ये पिछले 4 घंटों से जिस रूट के ऊपर फिर रहे हैं, किसी उस रूट के ऊपर किसी ने इनके साथ कोई मजामत नहीं की। और उस रूट के अलावा सारा शहर खुला है। ये अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे घर के ऊपर तशरीफ लाए हुए थे, मैं तो इनके इंतजार में बैठा था, लेकिन ये परे परे से जो है वो तशरीफ वापस ले गए हैं। तो बात ये है कि कहाँ पे इनको रोका गया है। बिल्कुल ठीक राणा साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। यही मैं जानना चाह रही हूँ कि जब इतना फ्री हैंड आप लोगों ने इस वक्त दे दिया कि वो लोग जहां जाना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं करें, तो फिर सूरत हाल कशीदा आखिर क्यों हुई, फायर कैसे हो गया? और दूसरी बात ये कि फिर इतना मसाइल कैसे दिन भर में पैदा हो गया? यही चीज सुबह में कर दी जाती। सूरत हाल कशीदा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई है कि एक बंदा हलाक हो गया। उस बंदे की हलाकत के बेनिफिशरी ये हैं और हम साबित करेंगे कि इनका उसमें क्या हाथ है। ठीक है, वो तो आप साबित करेंगे। राणा साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये मुतशद्दिद थे, ये तशद्दुद पे आमादा थे, तो क्या ये दीवारों से सर टकरा रहे थे? आप ही के तो कारकुन थे जिनके साथ इनकी लड़ाइयां हो रही थी। देखिए, बात ये है कि जहां कहीं भी कोई अपना, अगर आप कल की बात करते हैं या आज की बात करते हैं, बात ये है कि एक आदमी अपनी दुकान पे बैठा है, एक आदमी जो है वो अपने बाजार में बैठा है, और ये वहां पे जाके खामखा दंगा फसाद कर रहे हैं और वहां पे जाके ये नारा लगा रहे हैं। तो अगर वो आगे से नारा लगा दे तो वो बहुत बड़ा जो है वो जुर्म हो गया। और यही तो अर्ज कर रहा था मैं आपसे कि आपने क्यों अपने लोगों को तहम्मुल का मुजाहरा करने के लिए नहीं कहा था इससे पहले लोगों को तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन लाहौर, फैसलाबाद का ताजर, फैसलाबाद का दुकानदार, फैसलाबाद का कारोबारी लोग ये कह रहे थे कि हमने इनकी अपील के ऊपर अपनी दुकानें बंद नहीं करनी, हमने अपनी मार्केटें बंद नहीं करनी, फिर हम अब उनको जबरदस्ती हम करवाते बंद। ठीक। अच्छा राणा साहब, इससे पहले आप लोग लाहौर गए और सानहा मॉडल टाउन हो गया, बैरियर हटाने गए थे, कंटेनर लगाने पड़ गए। यहाँ पर भी अब दूसरी मरतबा आपके स्ट्रांग होल्ड में पीटीआई आई, यहाँ पर भी कत्लो गारत हो गया, खून बह गया यहाँ पर भी, और वहाँ पर भी एफआईआर में आपका नाम, यहाँ पर भी एफआईआर में आपका नाम। तो ये फैसलाबाद की बात है। फैसलाबाद में ये जो हक नवाज को फायर लगा है, इसका तो किस्सा सुबह जो है वो तमाम हो जाएगा। और एक इनका और कारकुन जो है वो हलाक हुआ है, उसका ये नाम ही नहीं ले रहे। वो टायरों को आग लगा रहा था, उसके कपड़ों को आग। तो आप ये कह रहे हैं कि 2 कारकुन पीटीआई के हलाक हुए? जी, उसके कपड़ों को आग लग गई, उसने नहर में छलांग लगा दी, वो वहां पे डूब के मर गया। ये उसको वहां से उसकी डेड बॉडी को लेके ना किसी हॉस्पिटल में गए हैं और उसको घर जाके खामोशी से दफना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उसका भी पर्चा मेरे ऊपर करवा दें। नहीं तो आप हमें तफसील बताएं ना कि उसकी बॉडी कहाँ गई फिर राणा साहब, अगर आपको पता है। बॉडी उन्होंने गायब कर दी है, वो हम उसको जो है वो सामने लाएंगे सुबह। अब उस आदमी को मैंने कहा था या पीएमएलएन ने कहा था कि टायरों को आग लगा दो, वो टायरों को आग लगाता, उसको अपने को आग लग गई, उसने नहर में छलांग लगाई और वहां पे मर गया। ठीक है राणा साहब, फिर आपने भी अनाउंस किया है कि एक नहीं 2 कारकुन पीटीआई के मरे, लेकिन वो इंडोर सिर्फ एक के बारे में कर रही है, दूसरे कारकुन के हवाले से वो कोई बात नहीं कर रही है, ये ऐसे ही कह रहे हैं आप? उन्होंने इस काम पे लगाया था कि टायरों को आग लगाओ। ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा लाहौर की तरफ आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले तकरीर की, उन्होंने ये इसमें कहा कि एक तो यौम सोग भी, एक कारकुन के हवाले से उन्होंने कहा कि यौम सोग कल जो जिस कारकुन की हलाकत हुई है उस पर हम मनाएंगे पूरे मुल्क में। दूसरा ये कि आज जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हमारे बर्गर वाले क्राउड कहा जाता है, हमें गाने वाला क्राउड कहा जाता है, अगर हमें पुरअमन एहतजाज लाहौर में नहीं करने दिया गया तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। अब लाहौर के हवाले से सूबाई हुकूमत क्या तैयारी कर रही है? मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को कैसे लाहौर में कंट्रोल करेंगे? वहां तो टेम्परेचर वैसे ही हाई है दोनों जमातों के कारकुनों के बीच में। सना मिर्जा साहब, आप मुझे ये बता दें कि जबरदस्ती दुकानें बंद कराना, जबरदस्ती रोड ब्लॉक करना, जबरदस्ती वहां पे टायर जलाना, टायर जलाते हुए कारकुनों को आग लगवाना, उनको मरवाना, ये अगर पुरअमन एहतजाज है तो फिर पूरा मुल्क जो है वो एक फैसला करके दे दे हुकूमत को, तो ठीक है। हुकूमत जो है वो फिर भी जिस शहर को ये कहें, वो शहर को फिर पहले हुकूमत ही कह दिया करे कि जी ठीक है, 1 दिन की हड़ताल कर दें।
हमारे मुल्क में एहतजाज कैसे होता है, इसी तरह से हमारे यहाँ एहतजाज होता है। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि जहाँ पर जैसे कि लाहौर का मैंने जिक्र किया कि लाहौर में जो कुछ हुआ मॉडल टाउन में, उसमें भी आपका जिक्र आया, और यहाँ पर जो कुछ हुआ उसमें भी आपका जिक्र आया। तो जहाँ पर आपका नाम होता है, आप जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर ये खून खराबा क्यों हो जाता है, वहाँ पर तशद्दुद क्यों नजर आता है? देखिए, बात ये है कि ये जो आज का वो फायरिंग करने वाला मामला है, इसका तो मैंने अर्ज किया है ना कि ये आप कल तक थोड़ा इंतजार कर लें। बाकी जहां तक मॉडल टाउन का तल्लक है, मैंने वो जिम्मेदारी ली है। मैं एक कॉमन मैन के तौर पे इंशाअल्लाह ताला इन्वेस्टिगेशन में शामिल हूंगा। इन्वेस्टिगेशन चाहे तारुल कादरी साहब खुद कर लें, कुरान पाक रखें सामने, चाहे खाना खुदा में बैठ के बात कर लें, चाहे अपने गोशा दरूद में कर लें। अगर मेरी सोच में भी ये बात हो कि वहां पे कोई जाए और जाके किसी को गोलियां मार दे, अगर चीफ मिनिस्टर ने ये सोचा भी हो, किसी को कहना या ऑर्डर करना तो बहुत दूर की बात है, तो हमें अल्लाह ताला ना इस दुनिया में माफ करे ना आखिरत में माफ करे। लेकिन अगर फिर सियासी मकासद के लिए इस किस्म के मुकदमे बनाना और फिर उनको प्रोपागेट करना, वो अगर इन लोगों ने ये लाशों की सियासत करने का तहिया कर रखा है, तो फिर बहरहाल फिर हम जो है वो बिल्कुल मैदान जो है वो छोड़ के तो पीछे नहीं हटेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। अल्लाह ताला जो है वो सच और झूठ का जो है वो फैसला करेगा। अच्छा राना साहब, दो नाम सामने आ रहे हैं फायरिंग करने वाले के, एक शाहिद भट्ट और एक नदीम मुगल, तस्दीक कर सकेंगे आप? जी, बस ये कल 3 बजे तक जो है ना, अभी इस राज के पर्दा ना उठाएं। अब राज की असर तस्वीर तो सामने आ गई, नाम भी बता दें। बस नहीं, फिर मैं ये कल इनको बताऊंगा। ये पहले नमाज जनाजा पढ़ लें और उसके बाद जो है ये सोग भी मना लें। मैं इनको शाम को बताऊंगा कि ये खुद ही करने वाले और खुद ही सोग मनाने वाले। अच्छा, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद, और ये कह रहे थे कि जिस हक नवाज जिसको कत्ल किया गया इस तमाम एहतजाज के दौरान में जो बंदा मरा है, वो मारने वाले भी उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ वाले हैं और सोग मनाने वाले भी तहरीक इंसाफ वाले। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि एक और शख्स की हलाकत भी हुई है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक रखता है, लेकिन उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है, उसे खामोशी से उसकी तदफीन कर दी जाएगी। ये भी अब एक सवाल के निशान है इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाकई वो कारकुन ताल्लुक रखता भी है या नहीं। इसी मामले पर और सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। इससे पहले कि आज की सूरत हाल पे आपसे बात करूं, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की हलाकत हुई है या 2 कारकुनान की हलाकत हुई है? बिराना सनाउल्लाह साहब तो ये कहते हैं कि 2 कारकुनों की डेथ्स हुई हैं आज। देखिए, कहते तो यही है, यहाँ शहीद हुए हैं, दूसरे की लाश नहीं मिल रही और उसको देख रहे हैं हॉस्पिटल में कि वो किस जगह से ये ले गए हैं और उसकी तहकीकात कर रहे हैं, और सारी ये लोग हॉस्पिटलों में पता कर रहे हैं कि उसकी डेड बॉडी इन्होंने कहाँ छुपाई और कहाँ लेकर गए हैं। अच्छा राना साहब, वो तो ये कह रहे हैं सनाउल्लाह साहब के, राना साहब ये कह रहे थे कि उसको जब वो टायर जला रहे थे या चीजों को आग लगा रहे थे तो उस दौरान उनको आग लगे और उसके बाद उसने नाले में कूद के अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जाबर नहीं हो सका वो, और आप लोगों ने बॉडी गायब कर दी। पोरस का हाथी है, जिस दिन ये सच बोलेगा इसकी सियासी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कल जो इसने इंटरव्यू दिया गाला में ताला लगा देंगे, फैसलाबाद में कोई दुकान बंद नहीं होगी, तो आज फिर खुलानी थी इसने दुकानें। और जिस तरह पुलिस ने फायर किया है और जिस तरह पुलिस की मौजूदगी में वो बंदा गोली चला रहा था, तो सारे पाकिस्तान ने फुटेज देखी है। ये क्यों कह रहे थे कि फैसलाबाद के बाद फैसला करेंगे कि हमने मुज़ाकरात के टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि लाश आप लोगों ने गायब कर दी है, दूसरी लाश। हम कैसे गायब कर सकते हैं? जो भी सूरत हाल है, लाश तो नहीं गायब हो सकती ना, लाश तो सरकार ही गायब कर सकती है और यकीनन इन्होंने की होगी। ठीक है। अच्छा शेख साहब, थोड़ा सा आपसे आज के बारे में जानना चाहेंगे कि आज आखिर मसला शुरू कहां से हुआ? आप लोग पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन एकदम वो एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया, दोनों जमातों के कारकुनान आमने सामने हो गया। मसला शुरू कहां से हुआ था आखिर? नहीं, ये कल से शुरू हुआ। कल राना सनाउल्लाह के जो MPAs हैं और दूसरे लोग हैं, वो जो चौक है, जो मेन चौक है फैसलाबाद का, उसको मुकाबले में आए। कभी सरकार भी मुकाबला करती है जी, इनको तो चाहिए था चाय पिलाते, पुलाव खिलाते, पानी पिलाते और कहते जी आप एहतजाज करें, जो दुकान बंद करता बंद करे, जो नहीं करता वो ना करे। इन्होंने तो बदमाशी की
کل جس طرح لوگوں کو مارا انہوں نے، کل جس طرح غنڈہ گردی کی، یہ پورس کے ہاتھی ہیں دونوں، رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی. کوئی وجہ ہی ہے نا کہ یہ بدنامی کا کلیم کیوں نکالا اسے شہباز شریف سے پچھلے کیس میں، اور اس میں یہ ثابت ہوا کہ ماڈل ٹاؤن میں بھی. شیخ صاحب آج جو کچھ ہوا اس کو دیکھ کر آپ کو تو زیادہ برا نہیں لگا ہوگا، کیونکہ آپ تو ماضی میں اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں اور آپ نے تو جلسوں میں اس طرح کی تقریریں کی ہیں. وہ ایک بار پھر سن لیں، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتی ہیں. یہ حکومت نااہل ہے، نالائق ہے، نکمی ہے، نکھٹو ہے، کرپٹ ہے، ڈسانسٹ ہے، سلگش ہے، ایکسٹرا ویگنٹ ہے. مجھے حکم دے عمران خان، میں گولی اندر ہوگی، چوہا جلندر ہوگا. اس نظام کو جلا دو، آگ لگا دو، محلوں کو گرا دو. غریبوں نکلو عمران خان کے ساتھ، پاکستان کو بچا لو اور کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کر. تو شیخ صاحب جو آپ چاہ رہے تھے وہ آج ہو تو گیا، اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ گنڈے پال رہے ہیں، اس نظام کو آگ لگا دو، اس نظام کا گھیراؤ کرو، اس نظام کو جلا دو جس میں غریب 26 سالہ 24 سالہ نوجوان جس کی شادی کو 8 دن رہ گئے ہیں اس کو یہ گولی مرواتے ہیں اپنے بدماشوں سے. ایسے نظام کو آگ لگانی چاہیے اور ایسے قاتلوں کو آخری مقام تک پہنچانا چاہیے. اور اسلام کا بھی یہی درس ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب، آخر میں بس آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، لاہور میں جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کراچی میں جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو اب یہ سمجھا پائیں گے یہ احتجاج پرامنی رکھنا ہے؟ اگر دوسری جماعت کے کارکنوں سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اور جذبات کو تھوڑا کنٹرول رکھنا ہے. پرامن رہنا ہوگا، پرامن رہنا چاہیے، لیکن کوئی کہے کہ آپ اہل مجھے مار. یہ آج جو کچھ فیصلہ آباد میں ہوا ہے، بڑی سی عادت یہی ہوتی کہ عمران خان صاحب آتے، جو دکانیں بند ہوتی وہ بند ہوتی، جو کھلی رہتی. سرے عام انہوں نے پرسوں سے لگے ہوئے ہیں. تو اگر انہوں نے لاہور میں ایسا کیا تو پھر یہ بات صرف لاہور شہر تک نہیں جائے گی، لاہور کے گرد و نواح تک چلی جائے گی، اور لاہور کے گرد و نواح کو عوام کی طاقت سے کوئی پولیس فورس نہیں بچا سکے گی. بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود. ان کی وہ تقریر کے اقتباسات بھی ہم نے آپ کو سنائے جو اس سے پہلے وہ کہتے رہے. آج حکومت ایک ایڈ بھی چلا رہی ہے، ایک اشتہار بھی چلا رہی ہے، اور اس میں بھی آپ بار بار سن رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ مار دو، جلا دو، گھیراؤ کرو. اور آج اس کا ایک ٹریلر بھی ہم نے دیکھا، اور جب آج ہم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کچھ اور بات کی، اور پھر آج وہ لاہور کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج رکھنا ہوگا، مگر اگر کسی نے ٹکراؤ کیا تو پھر یہی صورتحال ہوگی. تو عزائم وہاں پر بھی یہی ہیں. فیصلہ آپ خود کیجئے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط، کس کی کیا حکمت عملی ہے اور کس کے کیا مقاصد. حکومت کو یہاں کیا کرنا چاہیے تھا، حکومت نے یہاں پر کیا کیا، عمران خان صاحب کیا چاہتی ہیں اور شیخ رشید صاحب کیا چاہتی ہیں. بہرحال یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے. عمران خان صاحب کی درخواست منظور ہو گئی ہے، الیکشن ٹریبیونل نے ووٹوں کے تھیلے کھولنے کا حکم دے دیا ہے. ایک اچھی پیش رفت ہے عمران خان کی تحریک کے لیے. بات ہوگی ایک بریک کے بعد.